everyone, I'm Mansi and welcome back to our series of videos about housekeeping. इसके पहले वाले जो वीडियो है उस वीडियो में हम लोग ने एक नए टॉपिक के बारे में बात करने के लिए चालू की थी एंड दैट वाज अबाउट द फिटिंग्स एंड फिक्सचर्स विच आर देयर इन द रूम. हम लोग ने जनरल फिक्सचर्स के बारे में बात की थी. हम लोग ने स्पेशली बात की अबाउट द सैनिटरी फिक्सचर्स. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द things which are there in the room mostly for the decorative purpose, but before that we will take a small part which is related to bed. इसकी हम लोग ने बात की थी about bed. There are parts of the bed like we have bed base, we have mattress, we have headboard, we have footboard, we have bed and bench. ये तो बेड के पार्ट्स है, लेकिन देर आर इवन पार्ट्स ऑफ बेडिंग एज वेल. बेडिंग का मतलब है जो चीजें बेड बनाने के लिए यूज होती है. वन थिंग इन दिस इज पिलो. पिलो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. मोस्टली व्हेन यू गो इन होटल्स यू विल फाइंड डक डाउन पिलोज होते हैं या फिर फेदर पिलोज होते हैं अवेलेबल होटल्स में. वो बहुत फ्लफी होते हैं, लाइट वेट होते हैं. Even with this, if any guest is allergic to feathers, they do provide some other pillows as well. Like they do have cotton pillows, they do have hard pillows, they have foam pillows. So there are different types of pillows even available in the hotel. अगर एक अच्छा पिलो हम लोग लेते हैं तो उसका शेल्फ लाइफ इज अराउंड 10 years. With the pillows there are These are the pillows which are there in the room. जब एक बेसिक रूम रहता है उसमें रहते हैं. But even there are some other pillows as well which are there in the hotel and which the hotel gives to the guest as per the request, like a loan item which we can see. Like pillows में भी बहुत सारे types होते हैं, जैसे कि हम लोग ने अभी बात की. We have duck down pillow, we have feather pillow, we have foam pillow, we have specially memory foam pillow, hard pillow होता है. There is a body pillow which is available, there is a buckwheat pillow. So there are different types of pillows. Where I used to work in one of the properties, there was a pillow menu which was there on a side table of the bed. So if guest is not feeling comfortable with that particular duck down pillow or the guest is allergic to that pillow, then he can call to the housekeeping department and ask for the pillow which the person wants. Even eye for detail की जब बात आती है when they are making beds or we are talking about pillow, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ. Usually the thing is like on both the sides of the bed we used to keep two pillows. जब guest हमारे साथ रहते हैं and if we find in the first night जो है उनका स्टे का, उसमें हम लोग को पता चलता है कि इफ द गेस्ट इज यूजिंग वन पिलो इटसेल्फ, वो उसने दूसरा पिलो उठा के दूसरे साइड पे रख दिया है, guest is using only one pillow, so next time on the next day we have to take care ki that we will place one pillow for the guest and rest 3 pillows will be there beside to that. So it is about eye for detail, it is about providing comfort to the guest कि we have observed that कि वो गेस्ट एक ही पिलो यूज कर रहा है and we are giving him the service in that way. We are putting one pillow for him and rest 3 pillows are there beside. If he needed them, he can use them. With the pillows, there are bolsters. Bolsters basically bed पे आजकल कम होते हैं. They are there on the sofas, they are there on the settees. ये सिलेंड्रिकल होते हैं जिसको हम लोग आम लैंग्वेज में तकिए जिसको बोलते हैं, बोल्स्टर्स. ये बेसिकली डेकोरेटिव पर्पस के लिए होते हैं. गेस्ट इसके ऊपर सोते नहीं हैं बिकॉज इनकी हाइट ज़्यादा होती है, सो इट मे क्रिएट अ प्रॉब्लम टू द नेक. ये होते हैं फॉर द आर्म सपोर्ट, बेसिकली हाथ को सपोर्ट देने के लिए. फॉर द आर्म सपोर्ट दीज बोल्स्टर्स आर यूज. अबाउट केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज पिलोज, जैसे मैंने बोला, a standard pillow have the shelf life around 10 years or so. इनका प्रॉपर जब गेस्ट रूम का सर्विसिंग होता है, द पिलो कवर्स नीड टू बी रिमूव्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस. फ्रेश पिलो कवर्स नीड टू बी पुट ऑन. उनको
डस्ट करना है, उनका अगर शेप इधर उधर हो गया है, वी हैव टू मेक श्योर वी गेट दोज पिलोज इन प्रॉपर शेप. अगर कहीं पे स्टिच निकल गया है तो वी have to do the mendation of that pillows. If there are any stains or something, proper laundry procedure for the pillows as per the manufacturer which are given, we have to go through them, like dry cleaning suggest किया है तो dry cleaning, या फिर कुछ अलग laundry treatment suggest किया है by the manufacturer, we have to go in that way. Second thing which is there on the bed, it's about blankets. अलग अलग टाइप के होते हैं. मोस्टली वुल के ब्लैंकेट्स यूज किए जाते हैं विच आर मोस्टली ब्राउन इन कलर. इसके कलर्स डिफरेंट हो सकते हैं एज पर द इंटीरियर ऑफ द होटल और द स्टैंडर्ड्स ऑफ द प्रॉपर्टी. Even if some guests are allergic to such blankets, there are even cotton blankets which are provided, and that too on request. ये बातें हमें कब पता चलती है? when the guest do the reservation team do ask for some things, or when the guest checks in, at that time अगर फ्रंट ऑफिस वाले लोग उनसे बात करते हैं और ऐसी कोई चीज़ उनके ध्यान में आती है या फिर गेस्ट बोलता है, then they immediately inform it to the housekeeping department, and accordingly the changes needs to be done. Those changes will be done. अगर एक बार गेस्ट हमारे साथ आके रह के गए हैं, we have to maintain a proper like such things which are there, like a guest is allergic to the feathers, or guest needs only the cotton blankets, so not to place duvet or wool blankets in the room. ऐसी जो सारी चीजें हैं इनका भी रिकॉर्ड रखा जाता है. So next time when the guest checks in or do the reservation with us, we will make the room according to the criteria. We will make the room according to the guidelines which are there for particular guest. मेरे साथ भी एक गेस्ट ऐसे थे कि उनको कॉटन ब्लैंकेट लगता था, उनको हार्ड पिलो लगता था, उनको कॉस्मेटिक पैड्स ज़्यादा लगते थे. दे यूज़ मोर ऑफ हैंड टॉवल्स रादर देन फेस टॉवल्स. तो उनका ऐसे था कि इन प्लेस ऑफ फेस टॉवल ऑल्सो प्लीज कीप हैंड टॉवल्स. सो ऑल दिस प्रेफरेंसेस आर बीन रिटर्न बाय अस and have been mentioned in the system. So next time when guests do the reservation prior, तो ये सारी चीजें उनके रिमार्क्स में आ जाती थी, and accordingly we have to make the room so it is comfortable for the guest. Next thing which is there, it's about duvets. Most of the hotels में अभी blanket की जगह दुवे ने ले ली है. दुवे is like दो शीट्स के बीच में फिलिंग होता है, मे बी ऑफ फेदर, मे बी ऑफ कॉटन लिनन, और वो चारों साइड से स्टिच किया जाता है, एंड दैट इज बिन स्प्रेड ऑन द बेड विथ अ कवर. दुवे के साथ दुवे कवर भी होता है और वो बेड पे डाला जाता है. सो दुवे कवर्स जो होते हैं वो दुवे से थोड़े बड़े होते हैं, और उनको दुवे पे चढ़ा के वी हैव टू प्लेस देम ऑन द बेड. दुवे के कवर्स को नीचे से वो बड़े होते हैं और उनको फ्लिप्स होते हैं, सो दैट जो वेलक्रोज है बैक साइड पे उसके साथ चिपक के वो प्रॉपर रहता है. ये थोड़ा बड़ा इसीलिए होता है ताकि वो प्रॉपर सब बेड के साइड से प्रॉपरली नीचे तक आए या फिर टक करने के लिए easy हो जाए. So it is important that duvet cover needs to be a bit bigger than a duvet. Again about care and maintenance of such duvets, ड्राई क्लीनिंग करना है उनको. अगर इनके ऊपर कुछ स्टेन हो जाता है तो इमीडिएटली हमें सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना है और इसको लॉन्ड्री में भेजना है. इवन एज वी टॉक्ड अबाउट पिलोज, कहीं पे मैंडेशन की ज़रूरत है, इमीडिएटली इट हैज़ टू बी टेकन केयर, नहीं तो इसमें से फेदर्स बाहर आ जाएंगे एंड देन द दुवे विल नॉट बी ऑफ यूज एनी मोर फर्दर. नेक्स्ट thing which we are going to talk about is about the soft furnishing. Soft furnishing mostly decorative articles होते हैं, like they do have cushions, they have curtains, then with curtains they have blinds. Cushions यानी ऐसी चीज़ें या फिर ऐसे
गद्दे छोटे जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जो स्टूल्स पे, चेयर्स पे, सोफाज पे लगाए जाते हैं, सो दैट द पर्सन कैन सिट ऑन देम कंफर्टेबली। इवन ऐसे जो कुशंस होते हैं वो सोफाज पे, चेयर पे पीछे भी होते हैं टू गिव अ बैक सपोर्ट। इवन ऑन द बेड्स cushion are kept so that it is easier to use them. About the cushions, they come in different shape, they come in different colors. उसके जो कवर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, सो अकॉर्डिंग टू द कलर स्कीम ऑफ द रूम वो कुशन कवर्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सच कुशंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनको हाथ से डस्ट करना इम्पॉर्टेंट है, इनका जो शेप है उसको मेंटेन करने के लिए इनको पफ करके वो शेप में लाना इम्पॉर्टेंट है। कुशन कवर्स को टाइम टू टाइम चेंज करना है, उनके साथ जो भी लॉन्ड्री ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कुशन कवर्स के साथ वो करनी है। एंड एवरी टाइम वी हैव टू पुट द न्यू कुशन कवर्स टू द कुशंस एज वेल, क्योंकि उनके ऊपर स्टेन हो जाते हैं या फिर ऐसे कुछ, तो इनको लॉन्ड्री में भेजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली इनके जो कवर्स होते हैं कुशंस के, दे आर ऑफ शाइनी मटेरियल, दे आर वेरी सॉफ्ट इन मटेरियल, सिल्क के, सैटिन के, ऐसे इनके कवर्स होते हैं बिकॉज इट हैज अ लस्टर इन देम। नेक्स्ट इज अबाउट कर्टन। कर्टन्स के भी बहुत टाइप्स होते हैं अलग अलग। इनके बारे में हम लोग जैसे जैसे आगे जाएंगे इनके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले हैं। टॉकिंग अबाउट कर्टन्स, कर्टन्स बेसिकली जो रूम्स में होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। वन इज शेयर कर्टन एंड वन इज हेवी कर्टन। शेयर कर्टन यानी जो लाइट होता है, पहले एक शेयर कर्टन होता है, उसके ऊपर हेवी कर्टन होता है। शेयर कर्टन भी जब बंद करते हैं तब वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो बाहर की लाइट अंदर आ सकती है, यू कैन सी थ्रू देम। ग्लास विंडो है, उसके आगे होता है शेयर कर्टन और उसके आगे होता है हेवी कर्टन। ये कर्टन्स क्यों होते हैं? बिकॉज दीज कर्टन्स प्रोवाइड अस प्राइवेसी, इट प्रोटेक्ट्स द रूम फ्रॉम हीट। जो हीट है बाहर की वो अंदर नहीं आती, लाइट नहीं आता, और बहुत कम क्वांटिटी तक नॉइज को कंट्रोल करने का काम भी ये कर्टन्स करते हैं। शेयर कर्टन्स आर वेरी थिन, उसके आगे जो हेवी कर्टन्स होते हैं आर एक्चुअली हेवी कर्टन्स जो उसके आगे होते हैं, विच एक्चुअली प्रोटेक्ट्स द लाइट, द हीट फ्रॉम द आउटसाइड विच इज कमिंग इनसाइड द रूम। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर गेस्ट के कुछ ऐसे रिमार्क्स है कि कर्टन्स क्लोज होने चाहिए या फिर ऐसे, जब मॉर्निंग सर्विस होता है यूजुअली द कर्टन्स आर वाइड ओपन। जब टर्न डाउन का सर्विस होता है वी यूज टू क्लोज द कर्टन्स ताकि बाहर का लाइट अंदर ना आए एंड गेस्ट कैन गेट अ साउंड स्लीप। जब भी रूम क्लीनिंग के लिए जाते हैं मॉर्निंग में, वी हैव टू ओपन द कर्टन वाइडली सो दैट बाहर का जो लाइट है वो अंदर आ जाए एंड वॉट एवर थिंग्स वी आर डूइंग, मे बी डस्टिंग, मेकिंग अ बेड, इट कैन बी डन इन फुल विजुअल थिंग। ऐसे नहीं होना चाहिए कि कहीं पे डस्टिंग करते करते रह गया या फिर बेड में कहीं पे स्टेन आ गया, यू कांट सी such things in dark. So it is important that the curtains should be wide open when you are servicing the room in the morning. About care and maintenance, अगर इनको नीचे हम लोग लेके आते हैं तब इनको प्रॉपर लॉन्ड्री में प्रोसीजर के साथ उनका वॉशिंग होना चाहिए, ड्राई क्लीनिंग होना चाहिए। अगर वो लगे हुए हैं वी कैन क्लीन देम विद द वैक्यूम क्लीनर, उसके साथ प्रॉपर अटैचमेंट लगा के वी कैन क्लीन देम। जैसे कि हम लोग ने वैक्यूम क्लीनर का जो वीडियो किया था उसमें एक ऐसा बड़ा वाला रेक्टेंगल वाला हम लोग ने एक ब्रश देखा था, दैट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ द कर्टन्स। नेक्स्ट इज अबाउट द वैलेंसेस एंड स्वैग्स। ये होते हैं विच आर हंग ऑन द कर्टन्स टू हाइड द कर्टन बार्स। इनका भी क्लीनिंग वैक्यूम क्लीनर से किया जाता है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन देम एज वेल। जब इनको भी नीचे लेते हैं हम लोग, इनको भी प्रॉपर लॉन्ड्री प्रोसीजर में एज पर द मैन्युफैक्चरर के जो भी गाइडलाइंस है उनके थ्रू जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। Next we are talking about some more accessories which are there and we need to take care as
when we are talking about a room, or when we are talking particularly cleaning of such accessories. One is about picture frame. Picture frame हर रूम में होते हैं, as per the theme of the room वहाँ पे picture frames होते हैं. So we have to take care. A daily dusting of those picture frame needs to be done from the top as well. अगर ये पिक्चर फ्रेम है तो इसका जो टॉप है इसके ऊपर भी डस्टिंग करना उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके ऊपर डस्ट अक्यूमुलेट होता है. वो फ्रेम को अगर ग्लास है आगे से तो वो ग्लास का क्लीनिंग होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. वी हैव टू सी दैट कि जो फ्रेम लगा हुआ है उसका बैलेंस प्रॉपर है, ऐसा आड़ा टेढ़ा कैसे भी नहीं. इट शुड बी स्ट्रेट इन द प्लेस. सेकेंड इज अबाउट लैम्प्स. इसके बारे में हम लोग डिटेल में जैसे आगे जाएंगे वैसे बात करने ही वाले हैं, बट बेसिक थिंग्स अबाउट लैम्प इज लाइक लैम्प शेड कहीं पे क्रोकेड तो नहीं हुआ है, ये हमें देखना है. वो प्रॉपर प्लेस पे है ना, वो हिल तो नहीं रहा है, ये हमें देखना है. लाइट्स तो फ्यूज नहीं है, उनको भी प्रॉपर डस्टिंग करना या फिर अपहोल्स्ट्री ब्रश के साथ उनको क्लीन करना लैम्प शेड्स को. इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट. उसके लाइट्स चेक करने हैं कि कोई लाइट फ्यूज तो नहीं है. मॉर्निंग सर्विस जब होती है तब ये लैम्प्स चालू नहीं रहते हैं, वो बंद किए जाते हैं. लेकिन जब टर्न डाउन सर्विस की जाती है द बेड साइड लैम्प needs to be on, so that when the guest comes in the room he will see that okay turn down service दिया है and the room is ready. So guest आके वहाँ पे सो सकता है. We will talk about the turn down service and the morning service on these both services separately. I'm just giving you some examples through it. Third thing is about ornamental mirror. Ornamental mirrors यानी कुछ जड़े हुए जो मिरर्स होते हैं डिफरेंट शेप्स के, वो एज अ डेकोरेटिव आर्टिकल रूम में प्लेस किए जाते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन देम. द मिरर, द ग्लास हैज़ टू बी क्लीन विद द ग्लास क्लीनर. जो उसके बाजू में जो नक्काशी की है या फिर जो चीज़ें लगी हुई है प्रॉपर अपहोल्स्ट्री ब्रश से या फिर नॉर्मल ब्रश से इनको क्लीन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर कुछ मेटल का ये बना हुआ है जो साइड के डिज़ाइन है, द मेटल दैट पर्टिकुलर मेटल हैज़ टू बी पॉलिश, बट टेक केयर दैट वो जो पॉलिश है वो ग्लास पे ना जाए, नहीं तो इट कैन डैमेज द ग्लास of that particular mirror. As per the property ये decorative articles बदलते रहते हैं. कहीं पे आप कुछ अलग चीज़ें देखोगे, कहीं पे फ्रेम्स है, कहीं पे वाजेस है, कहीं पे मिरर्स है. It depends upon property to property, but we need to take care of all such things which are there in the rooms, all the fittings, all the fixtures, all the decorative articles which are there in the room. We have to take care of them. We have to take proper care and maintenance of them, so it will give us the long lasting result. So it will be there for longer period of time. अगर हम लोग इनकी केयर नहीं करेंगे तो वो टूट के खराब होके फेंकने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ all such things which are there in the property, all such things which are there placed in the room. So that's it for now. In next video we will meet up with some more interesting topics and we will talk about them. Till then, do like to our videos, do share it with your friends or the people who are doing a hotel management or who are interested in knowing such facts, and even do share to our channel. Till then, take care. Thank you.